हेलो हेलो मेरा ठीक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुडे our topic of discussion is anorectal diseases. We will discuss about common conditions of the anorectal diseases. First of all, we will go for the just introduction of the anus and anal canal, briefly surgical anatomy of the anal canal, some congenital conditions like imperfect anus, which is most common in the anal canal, common symptoms and how to examine the anus, and some fame and common anal conditions which are our practice in OPD and indoor. Introduction: anal and perianal disorders make up about 20% of the all outpatient and surgical referrals. These conditions are extremely distressing and embarrassing, and usually patient feels shy, and usually female patient to be examined by a surgeon or male doctor, especially in the OPD. And patient often put up with the symptoms for a long time due to these social reasons before seeking medical advice. In anatomy, we will discuss pelvic and parietal spaces and anatomy of the anal canal. You will see this beautiful picture showing the sigmoid starting and converting into the rectum, upper rectum, and up to the anal canal. This is the ischiorectal space bounded by the elevator ani, sphincters of the anal canal, skin of the buttock, and obturator internus muscle lying over the pubic bone. Similarly here, this is the perineal space which is between the mucosa and skin of the buttock. So these are basically muscles, internal sphincter, external sphincter communicating with the levator ani muscles. This is intersphincteric space. Anal canal is 1.5 centimeter, 1.5 inch or 4 centimeter long, and is directed downwards and backwards from the rectum to end at the anal orifice. Again, this is the rectum, this is the anal mucosa. और एक जो important चीज़ इसमें the junction between the rectum and anal mucosa, which is called the ano-endal junction. Endoderm and ectoderm का जो junction है, this is called dentate line. This is a transitional zone between the endoderm जो ऊपर वाला है rectum वाला, और ectoderm जो नीचे वाला जो म्यूकोजा एनस का और एनल कैनाल का है. Here are some blood vessels underlying this mucosa of the rectum. जो ऊपर वाला म्यूकोजा है वो columnar epithelium contain करता है, और जो नीचे वाला है वो squamous epithelium contain करता है. These are the sphincter muscles. This is the anal verge and this is the anal margin. Verge is inner part of the anus, and बाहर वाला जो है that is called the anal margin. Lower half of the canal जो हम ये कह रहे हैं dentate line, इससे नीचे जो है it is covered by the squamous epithelium जो मैंने पहले कहा, and the upper half is by the columnar epithelium. So carcinoma of the upper half is adenocarcinoma. चूँकि वो columnar है, एंडोडर्म है, तो जिसे कल एडिनोकार्सिनोमा, और जो नीचे वाला स्क्वेमस है वहाँ पे जो कार्सिनोमा रेज करता है इट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. जो इसकी ट्रांजिशनल जोन ये वाला सेम, और इसके ट्रांजिशनल जोन के अंदर जो थोड़े माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है, हिस्टोलॉजी है, जो ये म्यूकोजा है, दिस इज फोल्डेड इनटू सर्टेन फोल्ड्स, और फोल्ड्स जो बनाते हैं वो उनको कहते हैं कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी. दिस इज कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी. इसके दरमियान में पेरिनेल साइनसिस है, और इसके एंड पे नीचे जो इस तरह ये फोल्ड है, दिस इज द एनल क्रिप्ट ये वाला. और एनल ग्लैंड कहाँ होता है, दिस इज द एनल ग्लैंड. एनल ग्लैंड इंटरस्फिंक्टेरिक होता है, और यहाँ से शुरू होकर इससे कम्युनिकेशन होती है टुवर्ड दिस ट्रांजिशनल जोन. एंड दिस इज द एनोडर्म या एक्टोडर्म जो बाहर वाला हिस्सा है, एनल कैनाल और एनस वाला, और ये एंडोडर्म है. तो ये ग्लैंड जो है, दिस वी विल सी फर्दर. ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड कैन लीड टू द abscess formation and later on fistula in ano formation.
Blood supply of upper half of the anal canal is from the superior rectal vessels, which is continuation of the inferior mesenteric vessel. Inferior mesenteric से superior rectal supply आती है, और जो inferior rectal और middle rectal है, they are coming from the internal pudendal, coming from the internal iliac vessels. Lymphatics from the upper half go to the superior along the superior rectal vessels toward the lumbar lymph nodes, and जो लाइन के नीचे है पेक्टिनेट लाइन के नीचे वो इंग्वानल lymph nodes हो जाते हैं. और इसका नर्व सप्लाई है जो अपर हाफ है, इसमें ऑटोनॉमिक सिस्टम है क्योंकि एंडोडर्म है, और लोअर हाफ जो है वो सोमेटिक इंफीरियर रेक्टल नर्व्स होती हैं जो कि पेन सेंसिटिविटी को पिक करती हैं. ऊपर वाला हिस्सा जो इनसेंसिटिव है, इसलिए जो नीचे कट आएगा जिसमें फिशर है तो पेनफुल होगा, और ऊपर अल्सर है जो एंडोडर्म में है तो वो पेनलेस होगा. नाउ दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द, ये लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. आप पीछे से देख रहे हैं, दिस इज द एओर्टा, इंटरनल आई आर्टरीज, एंड लेटर इंटरनल आई से टुवर्ड दिस इज द राइट इंटरनल पुडेंडल आर्टरी. इंटरनल पुडेंडल से आगे जो राइट इंफीरियर रेक्टल है और राइट मिडल रेक्टल, ये मिडल और इंफीरियर रेक्टल, और जो सुपीरियर रेक्टल है वो ये वाली है. दिस इज कमिंग फ्रॉम द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. ये इंफीरियर मेसेंटेरिक की जो सिग्माइड ब्रांचेस हैं, और ये बाकी जो आर्टरी सप्लाई है पेल्विस की. Anal sphincter is very important for the maintenance of the continent system of the anal canal and anus. The anal sphincter is internal and external. Internal is continuation of the circular muscle of the rectum. This one, ये longitudinal smooth muscle जो rectum में आ रहे हैं वो internal sphincter बना रहे हैं, और external sphincter जो है वो ये है, this one. This is the 1, 2, 3. पहले यह है कि इसके 3 parts कहे जाते थे. Subcutaneous part is the lower one, मिडल पार्ट इज सुपरफिशियल, एंड सबसे ऊपर जो है वो डीप पार्ट है. तो दिस इज 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर. दिस इज फैट ऑफ द एनल कैनाल, बट नो द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज कंसिडर्ड एज अ वन मसल. तो इंटरनल जो है वो उसकी जो नर्व सप्लाई है वो एंडोडर्म से है, दैट इज द ऑटोनॉमिक, एंड जो एक्सटर्नल है वो सोमेटिक है. तो सोमेटिक वॉलंटरली मसल है और स्फिंक्टर है, और इंटरनल जो है वो इनवॉलंटरली एक्ट करता है. Congenital, when the infant is born, the problem in the congenital anomalies are imperforate anus या any other congenital anomalies, mainly divided into 2 parts. High abnormality अगर एंडोडर्म रीजन में होगा तो दिट इज एसोसिएटेड विद द पोर डेवलपमेंट ऑफ द पेल्विक मसल्स एज वेल, एंड लोअर abnormality जो सिंपल टू ट्रीट इज ओनली द involving the anal canal area. These abnormalities should be diagnosed at birth by the standard physical examination of the newborn infant. If the diagnosis is missed, the infant will have symptoms and signs of large bowel obstruction. जब बच्चा पैदा होगा तो एनस नहीं होगी, और जब अगर मिस हो गया, अगर फौरन देख लिया तो आप उसको हॉस्पिटल ले दें. अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि मेकोनियम पास होगा, बाद में स्टूल पास करेगा, और अगर ये डायग्नोसिस इज मिस्ड तो सून एंड आफ्टर विद इन डेज जो इंटरसेलुलर ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. दो हाई एबनॉर्मलिटीज़, जो रेक्टम है इट स्टॉप शॉर्ट ऑफ द पेल्विस फ्लोर से ऊपर होता है रेक्टम, एंड एनल कैनाल इज एब्सेंट. एंड लो एबनॉर्मलिटीज़ में कैनाल इज प्रेजेंट, एनल कैनाल, but it can be ectopic, and anus can be covered by the skin. Physical examination is diagnostic. Baby fails to produce meconium and stool in the first few hours of life. And how to investigate? If you send urine for meconium, it can be a sign of intestinal perforation अगर urine में meconium आ गया. And if the meconium is not visible, you put a metal mark on the site of anus, और बच्चे को अप्स डाउन करके, सर नीचे करके एक एक्सरे किया जाता है जिसको क्लोस्टोग्राम कहते हैं, और उसमें ये पता चलता है कि जो डिस्टल एंड है रेक्टम का वो कहाँ है. डिस्टल एंड यहाँ पे है, एक्चुअल साइट जेनस की यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस जो है वो कंजेनिटल अनोमली है, तो ये इट इज़ करेक्टेड सर्जिकली. ये बाकी जो ये अप्स डाउन है, ये लेग्स हैं और ये हेड है. It needs really vigorous treatment in infancy. Low abnormality should be treated by cutback type operation on regular digital
डायलिटेशन ऑफ बाय द मदर, मतलब उस साइड को जिस पे स्किन है वहाँ पे आप कट करें और एक न्यू एनस बना दें और उसकी रेगुलर डायलिटेशन होती रहती है। हाई एबनॉर्मलिटीज़ जो है उसमें पहला स्टेप, टू स्टेप मैनेजमेंट है। फर्स्ट स्टेप इज इक्लोस्टमी इन द फर्स्ट फ्यू डेज फॉलोड बाय सॉर्ट ऑफ पुल थ्रू ऑपरेशन। पुल थ्रू मीन कि आपने रेक्टम को पकड़ के नीचे लाना है, जिसके डिफरेंट नाम है। सेवंस ऑपरेशन है, सो है वह पोस्टीरियर सैजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी है। तो दिस इज बेसिकली फील्ड ऑफ द पीडियाट्रिक सर्जन। Now, what can be the common anal symptoms? The patient, very common diseases and symptoms when the patient come in our OPD: anal bleeding, the bleeding per rectum, perianal pain, perianal swelling, perianal itching, irritation, perianal discharge, and something coming out of rectum. तो ये जो combination है symptoms का, it makes your diagnosis. अगर bleeding with pain है तो fissure होगा, और सिर्फ ब्लीडिंग है तो इट कैन बी हेमराइड एज वेल, कार्सिनोमा। स्वेलिंग है तो सेस हो सकती है अगर पेन के साथ है, और स्वेलिंग पेनफुल नहीं है तो फिस्टुला है। इरिटेशन एंड इचिंग हेमराइड में भी हो सकती है, और इचिंग एंड इरिटेशन जो फिस्टुला में भी हो सकती है। पेरिनल डिस्चार्ज जो है वो हेमराइड में लेस लाइकली है लेकिन फिस्टुला में ज़्यादा है। और अगर डिस्चार्ज पेन के साथ है, ब्लीडिंग के साथ है, तो फिर फिशर भी हो सकता है। और समथिंग कमिंग आउट ऑफ रेक्टम कैन बी ए benign pathology like prolapse, rectal prolapse, and tumors. So symptoms make the diagnostic accuracy कि क्या क्या हो सकता है। How to examine the anus is careful attention to the circumstances, couch reasonable हो, light हो, gloves आपके पहने हो, जेल आपके पास हो, गाज हो, उससे पहले हर चीज़ का पेशेंट की कंसेंट ली हुई है। और सिम्स पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज सेटिस्फैक्ट्री। एग्जामिनेशन इज प्रोसीजर फर्स्ट यू डू, जो सारे एग्जामिनेशन का हिस्सा है, इंस्पेक्शन है, पल्पेशन, इसमें स्पेसिफिकली जो है DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी, ठीक है। अगर आपको लेंथ कम एग्जामिन करनी है और अगर ज़्यादा करनी है तो यू कैन सी अप टू द सिग्माइड कोलन बाय द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड सिग्माइडोस्कोप। तो इन सिम्टम्स and combining the examination signs, we will discuss some certain anal conditions. Most common is the hemorrhoid, anal fissure, anorectal abscess, anal fistula, perineal disease, rectal prolapse, anal incontinence, non-malignant stricture of the anus and anal canal, and anal neoplasm. So briefly, we will discuss one by one of all these common conditions. First of all, hemorrhoids. Hemorrhoids are very common. Basically, hemorrhoids are the consist of dilated venules, जो अभी हमने superior rectal, inferior rectal और middle rectal आर्टिस की हमने बात की। तो जब वेन्स वापस आ रही हैं, तो जब वेन्स डायलेट होती हैं तो वो हेमराइड्स बनाती हैं। तो जहाँ पे वेन्यूल्स एंड आर्टेरियोल्स कंबाइन करते हैं विद कनेक्टिव टिश्यू एंड रेक्टल एंड एनल म्यूकोजा, तो उसको हम पाइल्स कहते हैं या हेमराइड्स कहते हैं। पाइल्स कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ये इंटरनल जो है वो इट इज स्टार्टिंग अबव द पेक्टिनेट लाइन, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल हेमराइड। और अगर ये अराउंड द एनस है, ठीक है, एनस के अराउंड वेन्स कंजेस्टेड हैं, तो फिर उसको external hemorrhoid कहते हैं। The internal hemorrhoids are dilatation of superior hemorrhoidal veins above the dental line. तो obviously dental line से ऊपर है तो वो superior hemorrhoidal veins हैं, और अगर उससे नीचे है तो middle and inferior hemorrhoidal veins हैं। लोकेशन जो नेचुरली दे आर एनल कुशंस, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं फॉर कॉन्टिनेंस ऑफ द फीसिस। तो आपने कॉन्टिनेंट वॉलंटरी एक्शन बाय एक्सटर्नल स्फिंक्टर, तो नॉर्मल एनल कुशंस हैं, लेकिन जब ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड हेमराइड्स। तो राइट एंटीरियर एट द लेवल ऑफ दिस 11, राइट पोस्टीरियर 7 o'clock, ये क्लॉक है इस तरह का, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 और ये 9, ठीक है, इस तरह क्लॉक है। लिथोटमी पोजीशन है, हेड इस तरफ है, लेग्स ऊपर हैं। तो इन पोजीशन में जब आप देखते हैं यू सी एंड से दिस इज द पोजीशन ऑफ, ये पोजीशन है जो एक्चुअल फिगर है। और दिस इज 11 o'clock, दिस इज 7 o'clock, दिस इज 3 दिस इज 3 o'clock। तो 11, 7 and 3, these are the common sites of the hemorrhoids। and ये 11 right anterior, 7 right posterior, at 3 o'clock जो उसको कहते हैं left lateral। this is 11, this is 7, this is 3।
और ये जो इन बिटवीन है दीज आर बेसिकली अदर हेमराइड्स, ठीक है, जो सेकेंडरी हेमराइड्स कहला सकती हैं। Etiology can be primary cause can be inside the anatomical structure, and secondary cause is other than this structure. तो primary cause can be by birth, hereditary, familial, जिससे structural weakness है veins की dilated हुई तो हमने बना दिया। Anatomical factors हैं जिसमें legs, sphincters हैं, congestion of the veins and more sphincter relaxation जो उसमें hemorrhoids हो सकते हैं। सेकेंडरी काजेज जिस तरह प्रेग्नेंट वूमेन में पेशेंट स्ट्रेन करता है तो हेमराइड्स काज कर सकता है। venous obstruction like inferior vena cava obstruction and certain tumors can lead to the hemorrhoidal cushion development like the portal hypertension, ठीक है, in CLD patient chronic liver disease, when patients strain while micturating and while straining for further constipation तो hemorrhoid develop हो सकते हैं। venous congestion due to this can be all causes and carcinoma of the rectum also causes a hemorrhoid. तो patient presenting with bleeding per rectum in elder age like 45-50 तो उसमें आप कार्सिनोमा ज़रूर सस्पेक्ट करें। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग पर रेक्टम, प्रोलैप्स हो सकता है, समथिंग कमिंग आउट ऑफ रेक्टम, डिस्चार्ज विद प्लूराइटिस एंड आई। कुछ पेशेंट सिर्फ इचिंग से प्रेजेंट करते हैं। अर्ली हेमराइड्स में जैसे जैसे हेमराइड्स की डिग्री ज़्यादा होती है अभी हम देखते हैं ऐसे ऐसे सिम्टम्स और ऐड होते जाते हैं। पेन है जब 4th डिग्री हेमराइड होंगे, अभी हम आगे देखते हैं, और इस्कीमिक होंगे तो पेनफुल हो जाएंगे, और थ्रोम्बोस फाइल्स। डिग्रीज क्या हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। First degree is initial hemorrhoids. They are inside the rectum and anal canal and seen on only on the proctoscopy. Second degree जो हैं वो बाहर आते हैं, बाहर आके खुद ही अंदर चले जाते हैं, this is second degree hemorrhoid. थर्ड डिग्री हेमराइड जो है क्वेश्चन बाहर आते हैं और पेशेंट को मैन्युअली उसको अंदर डिस्प्लेस करना पड़ता है। And fourth is they are coming out and cannot be reduced even manually by the patient, or even they can be thrombosed and ischemic, तो जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द अर्ली हेमराइड। दिस इज प्रोक्टोस्कोप के अंदर है सेकंड डिग्री हेमराइड, थर्ड डिग्री है जो वापस चले गए हैं, और फोर्थ डिग्री है जो बाहर आके नहीं वापस जा रहे, और इसी तरह ये भी नहीं जा रहे। तो दिस इज द फोर्थ डिग्री ऑफ नॉन इस्कीमिक और नॉन थ्रोम्बोस। दिस इज फोर्थ डिग्री, दिस इज थ्रोम्बोस हेमराइड्स। How to diagnose the hemorrhoids? By definitely clinical history, एग्जामिनेशन जो भी हमने कहा, प्रोक्टोस्कोप करेंगे, पारेक्टल करेंगे, डिग्री पता चल जाएगी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आफ्टर द पारेक्टल एग्जामिनेशन फॉर द प्रेगनेंसी एंड एनी malignancy and mass in the abdomen to cause the pressure over the veins, investigation like proctoscopy भी हमने बात की। और complications क्या हो सकती हैं? Patient can be very anemic. I have seen patients with hemorrhoids at the hemoglobin level of 6 and 7 even, एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जो एमरजेंसी सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर आपको करना पड़ सकता है, एंड एक्यूट थ्रोम्बोसिस जो फोर्थ डिग्री हेमराइड्स हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन इशू हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? अर्ली ट्रीटमेंट कैन बी, अर्ली हेमराइड्स की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और नॉन सर्जिकल है, थोड़ा इंटरवीन करें और उसके बाद फिर टिपिकल जो हेमरेक्टमी है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, you give tips to reduce the constipation, ठीक है, increase and plenty of liquids, high fiber diet, ठीक है, reduce low fiber diet like naan, पराठा, इस तरह की चीज़ें वो बंद करें। पेशेंट का एनर्जी स्ट्रेन ना करे। जो पोजीशन है ड्यूरिंग डेफिकेशन दैट शुड बी कंफर्टेबल, ठीक है, और ऑकवर्ड स्ट्रेनिंग ना हो, और वॉक रेगुलर हो, मिल्क पिए, ठीक है, तो एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, रिड्यूस ऑफ वेट अगर ओबीज पेशेंट है। तो ये सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, और उसमें यू कैन अप्लाई दिस आइलोकेन जेल, यू कैन गिव सीड्स बाथ जो पानी में बैठते हैं पेशेंट, ठीक है, सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, यू कैन इंजेक्ट सम स्क्लेरोसेंट एजेंट जो फाइब्रोजिंग एजेंट इनटू द हेमराइडल टिश्यू, you can band the ligation, band the hemorrhoids. You can do cryosurgery, surgery by freezing, cold instrument, लेज़र हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली स्क्लेरोसेंट एजेंट है, ये फिनॉल इन ऑल्मोडाइल है जो हम इंजेक्ट करते हैं, या सोडियम टेट्रा डिसाइल इंजेक्शन है,
STD ये हम उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस रबर बैंडिंग जो है उसमें वो हम बैंड चढ़ाते हैं, 2 बैंड हम एक हेमराइड पे करते हैं, मैक्सिमम 3 बैंड कर सकते हैं। cryo surgery, it is not common nowadays. Laser is very costly, and second loss is a large manual dilatation. जो आप अंडर जिए आप 4 फिंगर डायलिटेशन दोनों फिंगर दोनों साइड पे डाल के आप डायलेट करते हैं इन कनाल को, and patient can feel comfortable. And if all the measures are failed and the degree of the hemorrhage are increasing and patient is going into complications like anemia and ischemia and everything, तो फिर hemorrhoidectomy, ठीक है, you have to ligate and excise the hemorrhoidal tissue. तो उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। ओपन हेमोरेक्टमी है जिसमें म्यूकोजा आप ओपन छोड़ देते हैं, क्लोज हेमरेक्टमी है जिसमें आप म्यूकोजा को क्लोज करते हैं, एंड हेमरेक्टमी है विद द स्टेपल गन जिसमें स्टेपलर यूज़ करते हैं, एंड नंबर 4 इज अंडर डॉपलर हेमरेडल आर्टरी ligation procedure operation, HALO, HALO. HALO is a latest hemeradal artery ligation operation, तो उसमें भी इस टाइप ऑफ द हेमरेक्टमी। एक्सटर्नल हेमराइड्स जिस तरह हमने पहले कहा, दे आर अराउंड द एनस। जब एक्सटर्नल हेमराइड्स को पेरिनियल हेमाटोमा भी कहते हैं कि वेन डायलेटेड हो। हेमाटोमा कैसे बनेगा? एक्सटर्नल हेमराइड को जब ट्रामा होगा या स्ट्रेन करेगा पेशेंट को रप्चर ऑफ डायलेटेड वेन्स ड्यू टू स्वेयर स्ट्रेनिंग लाइक कॉन्स्टिपेशन। तो ट्रीटमेंट ये है कि अगर पेनफुल लंप है, एग्जामिनेशन पे पेनफुल लंप आपको नजर आएगा, टेंस होगा, टेंडर है, ब्लूइश है और स्मूथ शाइनिंग स्किन है, तो लोकल एनेस्थीसिया लगा के उसको आप कट करते हैं तो लोकल इवैक्यूएशन हो सकती है पेशेंट की, अगर पेशेंट 48 आवर्स के अंदर आता है। और अगर लेट है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो हमने पहले सारी की डिस्कस की है। इफ़ दिस पेरिनियल हेमाटोमा producing in the external hemorrhoid is left untreated, so it can maybe resolved, it can ulcerate, bone formation हो सकती है, it can go into infection and it can lead to fibrosis and skin tag. अगर आप चेहरा देखें तो इसमें जो पैथोलॉजी है वो एनल फिशर। एनल फिशर इज वेरी पेनफुल कंडीशन, it's a longitudinal tear in the mucosa and skin of the anal canal and commonly posterior midline जो 6 o'clock पे और less likely 12 o'clock पे हैं, more common in female, और lateral sphincters हो सकते हैं 3 o'clock 9 o'clock पे, लेकिन they are rare, and if they are present they can be secondary to Crohn's disease, tuberculosis and malignancy of the anal canal. Etiology of the fissure is tearing of the inner lining by over distension of the anal canal during passage of hard large stool. Tearing of anal valve, जो हम अभी बात कर रहे थे, anal columns के दरमियान में valve होता है और fibrous polyps की tear की वजह से हो सकता है। Laceration of anal by sharp foreign body like trauma and excessive straining during childbirth जो है वो can lead to the fissure formation. एक्यूट फिशर एंड क्रोनिक फिशर दो कैटेगरी हैं। लेस देन 6 वीक्स अगर सिम्टम्स हैं तो एक्यूट फिशर है, और मोर देन 6 वीक और 8 to 12 वीक्स हैं तो वो क्रोनिक फिशर है। तो एक्यूट इफ नॉट सेटल्ड and managed conservatively and accurately, it can convert into the chronic fissure formation as a result of secondary pathological changes. Chronicity develop हो सकती है, एक पाइल सेंट्रल पाइल है, स्किन टैग बनता है फिशर के साथ, वो बन सकता है और उसको हाइपोट्रोफिक एनाल पैपिला भी कहते हैं, और कॉन्टेक्चर ऑफ द एनस हो सकता है, उस जगह पर जब फाइब्रोसिस होगा थोड़ा सा कॉन्टेक्चर डेवलप कर सकते हैं। फिशर कैन बी इन्फेक्टेड, पेनफुल तो है पहले, लेकिन उसमें पस भी आ सकती है और फीवर भी हो सकती है। तो क्लिनिकल फीचर्स, दे इफेक्ट यंग एंड मिडिल एज एडल्ट्स, कॉमन इन फीमेल एंड मेल, rare in old age, may occur in infancy and cause acute megacolon. Acute megacolon पेन है बहुत ज़्यादा, पेशेंट स्टूल नहीं पास करेगा, पीछे कोलन जो है वो डिस्टेंड हो जाएगा, सेकेंडरी मेगा कोलन जो है वो डेवलप हो सकता है, इट्स वेरी रेयर। पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेफिकेशन, फर्स्ट सिम्टम कॉन्स्टिपेशन is 99.9% can be associated with the fissure. Fissure can bleed, minor bleeding as compared to hemorrhoids, लेकिन fissure can discharge अगर उसमें infection के signs आ जाए। When you examine the illness, जैसा हमने पहले कहा, तो fissure and ulcer will be distal to the dentate line, number 1. Sentinel pile जो हम skin tag कह रहे हैं
तो हाइपोट्रोफी वो प्रेजेंट हो सकता है, हाइपोट्रोफी भी शो करते हैं, और देयर विल बी spasm of the internal sphincter. Per rectal is very difficult to put finger into the anal canal, and proctoscopy is never indicated in the presence of the fissure. पता कैसे चलेगा? जब आप बुटक्स को थोड़ा स्प्लिट करके देखेंगे तो आपको कट नजर आ जाएगा, और जब कट नजर आया तो you will not go for the proctoscopy. This is the rule. How to treat the fissure? First of all, conservative, then surgery, as treatment of all the diseases mostly. You have to do and go for the stool softeners. जिससे laxatives हम दो फलक देते हैं, Scalax drops है, laxatives और जैसे ठीक है। तो सिट्स बात है, पानी के टब में बिठाना है सुबह शाम, ठीक है, मोस्टली 10 से 15 मिनट। उसमें GTN क्रीम्स हैं, ज़ैलुकन एम्ब्राइडल जेल है, स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। तो ये सारा इस सीक्वेंस वाइज पेशेंट को सारा समझाना है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है, ये सारी ट्रीटमेंट्स करनी है, और ट्रीटमेंट इज एडवाइज फॉर 1 to 2 weeks एंड रेगुलर फॉलोअप इज रिक्वायर्ड। इफ पेशेंट सेटल्ड बाय दिस कंजर्वेटिव मेजर्स, जो क्रीम्स भी लगा रहा है, पानी में बैठ रहा है, मेडिकेटिव भी ले रहा है, ठीक है, और सारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी चल रही हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन, मोस्टली फिशर सेटल्ड। अगर नहीं, देन यू हैव टू डू फॉर द procedure, or procedure जो है अंडर एनेस्थीसिया यू हैव टू डायलेट द एनल यानी एनस एनल कैनाल, जिसको कहते हैं एनल स्टिच, जो हमने पहले बात की, और हेमराइड्स इवन फिशरेक्टमी, फिशर वाला हिस्सा आप एक्सरसाइज करते हैं, और डॉर्सल स्फिंक्टोटमी है जो 6 o'clock पे है वो कर दें। और अगर आपने फिशरेक्टमी नहीं की और डॉर्सल स्फिंक्टोटमी, तो फिर लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटमी, आप लेटरल साइड पे 3 o'clock पे आप उसको यू कैन कट द इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, इट कैन बी ओपन एंड क्लोज। जिस तरह हम कहते हैं म्यूकोजा ओपन है तो ओपन है, अगर म्यूकोजा कट करके आप म्यूकोजा को ओपन करके कट किया इंटरनल स्फिंक्टर तो उसको क्लोज, और बाद में क्लोज कर दे तो उसको क्लोज करते हैं। So internal sphincterotomy means you have to exercise a portion less than 1/3 of the internal sphincter। उसमें क्या होता है कि स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, फिशर को ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और हीलिंग कैन स्टार्ट एट द लेवल ऑफ द फिशर और पेन इज रिड्यूस्ड। तो ये इंटरनल लेटरल इंटरनल sphincterotomy is answer for the treatment of the fissures after the failure of the conservative treatment. Now the next common condition is perineal abscess. Perineal abscess patient कैसे present करेगा? First of all, पैथोजेनेसिस क्या है? Infection starts in the one of the crypts of Morgan, जब भी हमने देखा है वो कॉलम से anal canal में and extends along the related anal gland to the internal sphincter plane, जो sphincter के दरमियान में पड़े हुए थे, where it forms an abscess, or it tracks in different direction to produce different type of abscesses, which are classified as follows. पेरिएनल एब्सेस जो एनल कैनाल के अराउंड है 60% है, इस्चोरेक्टल जो इस्चोरेक्टल फोसा में है 20%, सबम्यूकोजल जो म्यूकोजा के नीचे हैं 1%, इंटरस्फिंक्टर 5% है, और पेल्विरेक्टल जो सुप्रालेवेटर लेवेटर अनाई के ऊपर है वो 4% है एब्सेसिस। इन पेशेंट में रिकरेंट एनल एब्सेसिस, उसमें हम 3 चीज़ों का जरूर कंसिडर करेंगे जिनमें बार बार एब्सेसिस बनती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं, क्रोन्स डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, रेक्टल कैंसर है। Features of abscess can be severe pain, high-grade fever, and sometimes bleedings. And signs they will perineal swelling. हम पहले बात कर रहे थे। अब ऐसा combination of symptoms बन रहे हैं तो diagnosis आपका change होता है। इसमें pressure में swelling नहीं थी, इसमें swelling है, इसमें pain है, hemorrhage में pain नहीं थी, ठीक है, and there will be tenderness within duration and the perineal area around the anus, and per rectal examination will be painful, and you can feel some bogginess at the site of the abscess as well. And treatment is abscess is incision and drainage at the last. Our छोटी abscess it can be aspirated as well under bouts of antibiotics. And lastly, you can incise and drain the abscess, send the pus for culture sensitivity, and abscess wall for the histopathology. Perineal abscess फिश जब बर्स्ट होगी या आप इंसाइज करेंगे, इंसिडेंस करेंगे, तो फिशुला इन एनो इज मोस्टली मैंडेटरी एंड इट कैन रिकर एज वेल अगर पैथोलॉजी कोई स्पेसिफिक है। फिशुला इन एनो मीन व्हाट इज फिशुला? फिशुला इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सेल्स। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो अंदर म्यूकोजा के साथ है और बाहर
बटक स्किन के साथ है। तो track lined by granulation tissue which connects deeply in the anal canal and rectum and superficial on the skin around the anus. It usually results from the anal rectal abscess, ठीक है, क्योंकि abscess पेरिनियल ग्लैंड से शुरू हुई है तो वो रास्ता बना देते हैं और वो फिशुला बन जाता है। Any fistula is has well association with the Crohn's disease, tuberculosis, colon carcinoma rectum and lymphogranuloma venereum जो क्लेमाइडिया टैकोमेटस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डेवलप करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इन सारी कंडीशन में, और जो सिंगल फिशुला है या मल्टीपल है, तो अगर मल्टीपल है तो ऑलवेज थिंक ऑफ दीज आर डिजीजेस जो मैंने अभी क्रोन्स, ट्यूबरकुलोसिस, कार्सिनोमा एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये फिशुला की डिफिनेशन में आती है। टाइप्स ऑफ फिशुला, लो एंड हाई। लो फिशुला इज फिशुला बिलो द प्यूबरक्टाइलिस मसल, जो एक स्लिंग होता है, ठीक है, जो रेक्टल एंगल बनाता है। एंड हाई इज अबव द प्यूबरक्टाइलिस मसल। लो फिशुला, प्यूबरक्टाइलिस से नीचे जितने भी फिशुलाज हैं, चाहे उसकी जो भी टाइप है वो भी हम देखते हैं। लो इंटरस्टिंक्टेरिक है, लो ट्रांसमिटेरिक है, सबकुटेनियस है, सब म्यूकस है, वो सारे लो कैटेगरी में हैं। और हाई कैटेगरी में ये सारे अगर अबव द प्यूबरक्टाइलिस मसल है, इवन ट्रांसमिटेरिक ही है, तो वो हाई फिशुला आएगा। और अबव द प्यूबरक्टाइलिस मसल, फॉर एग्जांपल पेल्वी रेक्टल अगर लेवेटर नाई से ऊपर है तो वो डेफिनेटली प्यूबरक्टाइलिस से ऊपर होगा, तो उसको हाई फिशुला। very firm classification, partial classification for fistula intersphincteric is 45%, जो स्फिंक्टर के दरमियान में है। अभी हम पिक्चर देखते हैं कि ट्रांसफिंक्टेरिक है जो स्फिंक्टर को क्रॉस कर रहा है, 30% है। सुपरास्फिंक्टेरिक जो स्फिंक्टर के स्फिंक्टर्स के ऊपर है, 20% है। और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक जो स्फिंक्टर के बाहर से आ रहा है, 5% है। तो बेसिकली ये जो पास्ट क्लासिफिकेशन है, दिस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ द फिशुलस ट्रैक्ट विद द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, नॉट इंटरनल स्फिंक्टर। क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर की जो डैमेज है, that can lead to incontinence, not the internal sphincter. Internal sphincter damage है वो flatus incontinence cause करती है। So this classification is important for the management of the fistula. So this is the picture. This is the levator ani muscle. This is puborectalis muscle जो स्लिंग बना रहा है। This is the external anal sphincter. This is the internal anal sphincter. So this is the dentate line. और डेंटेट लाइन से ऊपर है, लेकिन इस प्यूबरक्टाइलिस से नीचे है, तो ये लो एनल फिशुला। अगर ये फिशुला यहाँ से शुरू हो तो ये हाई एनल फिशुला है, चाहे वो ट्रांसफिंक्टेरिक है। तो दिस इज इंटरस्फिंक्टेरिक इज 45%। टाइप 2 इज द ट्रांसफिंक्टेरिक, जो स्फिंक्टर्स को ऐसे क्रॉस कर रहा है, दिस इज 30%। दिस इज द सुपरास्फिंक्टेरिक, जो स्फिंक्टेरिक से ऊपर है। एंड इसकी जो ये प्यूबरक्टाइलिस से नीचे है, तो प्यूबरक्टाइलिस से ऊपर है तो हाई ट्रांसफिंक्टेरिक भी है। एंड दिस इज द एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक, जो बिल्कुल दोनों स्फिंक्टर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज 5%, दिस इज 20%। Gost's role is very important in fistula management. If you draw an imaginary line between two ischiorectal spines, तो एनल कैनाल को आप ट्रांसेक्ट कर सकते हैं। इमेजिनरी लाइन है, नॉट द जनरल लाइन। उसको आप ट्रांसेक्ट करते हैं इनटू द इंटीरियर पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन। तो एक्सटर्नल ओपनिंग इन रिलेशन टू द इंटीरियर हाफ ऑफ द एनल, दे टेंड टू बी रेडियल, यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो रेडियल होगी, स्ट्रेट होगी। तो ये एक रूल है। और अगर एनल कैनाल की पोस्टीरियर साइड पे है, जैसा क्लॉक है, और अगर आप 12 क्लॉक वाली साइड पे हैं तो रेडियल होगा ट्रैक। और अगर आप 6 क्लॉक वाली साइड पे हैं तो वो ट्रैक जो है दो टेंड टू ओपन इंटरनली इन दी पोस्टीरियर मिड लाइन, पीछे जाके ऐसे खुला होगा और हार्ट शू शेप बनाता है, हार्ट शू शेप शक्ल का हो सकता है। तो ये इस तरह है। एनल कैनाल को आपने ऐसे डिवाइड किया इमेजिनरी लाइन में, ये इंटीरियर है पोर्शन, ये पोस्टीरियर है, पेशेंट ऐसे लिथोटमिक पोजीशन में। तो अगर ये एक ट्रैक इधर होगा जिस तरह ये है, तो ये लाइकली ऐसे स्ट्रेट ट्रैक हो जो, ठीक है। और अगर ये ट्रैक इधर होगा तो ऐसे कर जो जिस तरह अब ये है, तो ये लाइकली ये हार्ट शू शेप, जिस तरह राउंडेड सर्कमविलियर, ठीक है, जो नीम दायरा नुमा होगा, ये गुड सालोल है, ये टेल बोन। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फिस्टुला इज, जब हम पहले कह रहे थे, पेरिनियल स्वेलिंग भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है।
ठीक है, और पेन के साथ भी हो सकता है। एक्सटर्नल ओपनिंग में भी सीन जब आप एग्जामिन करती हैं ओपीडी में, तो इंटरनल यूजली नॉट कैपेबल, लेकिन अगर लो लाइन फिशुला हो, छोटा सा हो, तो आपको दोनों ओपनिंग्स पल्पेट हो जाती हैं और ट्रैक भी पल्पेट होता है। द ट्रैक इज ऑल्सो पल्पेबल एज कॉर्ड ऑन करेक्ट एग्जामिनेशन। लेकिन अगर हाई एनल फिशुला है तो आपको एक्सटर्नल ओपनिंग तो नजर आएगी अगर उस लाइन के पोस्टीरियर है, लेकिन इंटरनल ओपनिंग ऊपर कहीं होगी तो उसको आप नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन उसमें नहीं हो सकता। उसके लिए फिर आपको रेडियोलॉजी एडवाइस करनी पड़ती है, जिसको फिस्टुलोग्राम कहते हैं। तो फिस्टुलोग्राम कैन बी एडवाइज बाय द फिस्टुला, MRI कैन बी एडवाइज बाय द फिस्टुला, एंड MRI भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसमें इंजेक्ट करके तो उसको आउटलाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द MRI। एंडो ल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड है जो एंडोस्कोपिकली यू कैन रूल आउट द फिस्टुलर ट्रैक, इंटरनल ओपनिंग कहाँ जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्टोस्कोपी जब हम ओपीडी में करते हैं, देन फिशुलोग्राम, MRI, ETC, एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड, एंड जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं फिशुला को, तो ऑलवेज सेंड बायोप्सी फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी। ट्रीटमेंट क्या है, फिस्टुलोटमी एंड फिस्टुलेक्टमी। तो आप कहते हैं कि ओनली डू फिस्टुलोटमी फॉर लो एनल फिस्टुलास, और अगर एनल ओपनिंग, इंटरनल एनल ओपनिंग ऊपर है, प्यूबरोक्टेलिस से ऊपर है, तो फिर एक सीट ऑन प्लेसमेंट इसका इस्तेमाल होता है, जो एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर या ट्यूब या ग्लव उसमें डाल के, तो आप उसको लीव इट टू ट्रांसेक्ट ऑल द स्फिंक्टर मसल्स, एंड ऐसा ऐसा वो ग्रेविटेट करके नीचे आता जाता है, और जख्म वो जो फिशुला ट्रैक है वो एक्सरसाइज करना पड़ता है आपको बाद में। तो ऑलवेज सेंड फिशुला ट्रैक फॉर बायोप्सी, rule out the tuberculosis, Crohn's disease, and malignancy. Bionodal disease also very common. Bionodal disease is subcutaneous infection in the greater buttocks near the coccyx, tailbone के पास होती है, बेसिकली जो उसमें है ग्रूव में, or can present an abscess or chronic non-healing wound and sinus formation, and typically presents in the second life decade of life. Male to female ratio is 3:4:1। जो स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2, इसको जीप ड्राइवर डिजीज भी कहते हैं। जो ड्राइवर जीप पे वो फाइट कर रहे थे, और तो उसमें सहरा में और इस तरह, तो वो फ्रिक्शन की वजह से पीछे हेयरी बाल हैं वो टूटते हैं, बाल जो स्किन में जाते हैं, ठीक है, और वो जो बाल का एक नेस्ट बनता है, ठीक है, और उस नेस्ट की वजह से फिर इन्फेक्शन है, साइनस बनती है, एब्सेस होता है, तो ये इसकी स्टार्टिंग वजह। तो जीप ड्राइवर डिजीज इन वर्ल्ड वॉर 2, it was very common disease। 79,000 soldiers एडमिट हुए हॉस्पिटल में, और एवरेज स्टे वाज 55 days, very long stay। and due to this common disease, जनरल सर्जन ऑफ दैट वार उसने मना कर दिया कि वाइट डोकोनिक्सिन ना करें, तो वो बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। एक्वायर्ड कंडीशन जिसमें बता रहा, फ्रिक्शन ऑफ द हेयरी स्किन with any object like chair, like seat of the your car, और एनी अदर फ्रिक्शन, तो उसमें बाल टूटते हैं और अंदर चले जाते हैं। ऑब्जर्व इन हैंड्स ऑफ द शीप शेयरर्स एंड बार्बर्स इम्प्लाइंग दैट देयर हेयर कैन शेयर दैट कंडीशन। उनके ये ना सिर्फ नेटल क्लेफ्ट में बल्कि इंटरडिजिटल प्लेसेस में भी हो सकती है, फिंगर्स, हैंड की फिंगर्स के दरमियान भी हो सकती है। जो जो शीप शेयरर्स हैं, जो उनको उनके बाल काटने वाले हैं, ठीक है, शीप्स के और नाइयों के हाथ के दौरान फॉरेन बॉडी रिएक्शन है, ठीक है। पाइलो मीन हेयर, नाइडस मीन उसका एक फोकस, और साइनस मीन उसने ट्रैक बार बना दिया, तो ये फॉरेन बॉडी रिएक्शन है। इसमें अगर आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, पैनोलिसिस्ट मिसनोमर इज मोर एप्रिशिएटली साइनस, सिस्ट भी साइनस ही होता है बेसिकली, साइनस का मुंह बंद हुआ तो नीचे सिस्ट बन गई। और पाइलोनोडल मीन हेयर नेस्ट, एंड फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1833 बाय न्यू साइंटिस्ट। तो ये पिक्चर है, अगर आप देखें तो नॉर्मल स्किन है, दिस इज बाल, ये बाल हैं, बाल टूट के अंदर चले गए हैं, और ये सारा उसने घोंसला सा बना दिया हुआ है। दिस इज द सिस्ट, दिस इज प्रेजेंस ऑफ पस, एंड दिस इज साइनस फॉर्मेशन जब वो ट्रैक बाहर आ जाता है। पायनोडल साइनस, ये दो ओपनिंग्स हैं, ये नीचे एनस है, अगेन सेम एक प्रो उसके अंदर डाली है, इस तरह ये ट्रैक इस तरह है यूं, ठीक है, ये लाइकली हेयर इज एनस, और ये प्रोपोर्शन है। प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद पेन, स्वेलिंग, एरिथीमा इन द नेटल क्लेफ्ट, एक्यूट पायनोडल एब्सेस,
And chronic abscess in established sinus cavity fail to heal because of retained hair acting as a foreign body. तो अगर abscess है, this is abscess, तो abscess की treatment is not excision बल्कि incision है. Excision with acute inflammation not a good criteria. Abscess should be drained 1 centimeter lateral to the midline. आपने लेफ्ट थोड़ा सा लेटरल साइड पे इंसिजन देना है. वाइड एक्सिजन आफ्टर हीलिंग ऑफ द abscess. एक दफा abscess हील हो जाए फिर उसके बाद उसको एक्सरसाइज करें. और शेव हेयर विद इन 2 इंचेस ऑफ द लेफ्ट. तो ये दो चीज़ें टू अवॉइड द फ्रिक्शन एंड रिड्यूस हेयर बल्क एट दैट एरिया. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इवन फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी और सर्जरी के बाद भी. इवन आपने ये दो काम करें. नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज शेविंग, जो मैं पहले कह रहा हूँ. A non-randomized study with retrospective 3 years follow-up Armstrong 1994 में उसने कहा कि शेविंग इज मोर इफेक्टिव विद लेस बैड डेज. यानी कम लेटना और शेव रखना ये मोर इम्पोर्टेंट दैन द सर्जिकल मैनेजमेंट. पहला सर्जिकल ऑप्शन क्या है? अनरूफिंग. उसकी रूफ को ऐसे उड़ा दें थोड़ा सा, और सेकेंडरी हीलिंग होती है तो वोंड जो वो हील होना शुरू हो जाते हैं. और रूफ अनरूफिंग ऑफ द साइनस विदाउट वाइड डीप एक्सिजन, इसमें रिकरेंस रेट ज़्यादा है 13%. दूसरा ऑप्शन है मिड लाइन एक्सिजन. यू एक्साइज you can excise and you can leave it open and you can close the defect. तो with or without primary closure, no clear benefit shown between open versus closed एक्सिजन. अगर आप ये देखें तो ये सारा पार्ट एक्साइज हुआ है और सेकेंड हीलिंग से ये हील हो गया हुआ है. क्लोजर की पिक्चर नहीं है, उसमें आप स्टिच कर देंगे. बेस्ट काउंट 1 क्रोनिक एब्सेस क्यूरेटेज एंड मिड लाइन पिट एक्सिजन, ये नंबर 2 ऑप्शन है. उसमें लेटरल डिब्राइडमेंट फ्रॉम इंसिजन 1 सेंटीमीटर ऑफ द मिड लाइन with excision of the midline pits, closure of the pit excision sites and post-operative shaving for the on the. इसमें ये पॉइंट था. साइड पे आपने इंसिजन दिया है, वहाँ से ये बाल सारे निकाल लिए हैं, इस पिट को बंद कर दिया और इसको ओपन छोड़ दिया इस तरह. तो ये है बेस्ट कॉम 1 ऑपरेशन. सिमिलरली बेस्ट कॉम थोड़ा सा डिफरेंट है बेस्ट कॉम 2. उसमें यह है कि आप इसको कहते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट प्रोसीजर. उसको सबक्यूटेनियस को थोड़ा सा लिफ्ट कर लेते हैं एंड जो ऑब्लिटेट द ग्लूटल क्लेफ्ट विदाउट एक्सिजन ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, उसको उठा के अंदर से स्वाई करके उसी तरह उसको बंद कर देते हैं. कोई टिश्यू ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते. रीअप्रोक्सीमेटेड द फ्लैप ऑब्लिटेटिंग द ग्लूटल क्लेफ्ट लाइक दिस. ये है, इसको ऐसे किया आपने, थोड़ा सा ये पोर्शन निकाल दिया और इसको ऐसे ला के बंद किया. दिस इज द बेस्ट कॉम क्लेफ्ट लिफ्ट प्रोसीजर 2 फॉर पर्सनल डिजीज. Third is the rhomboid. Rhomboid's cutaneous flap. It has good result in recurrent diseases. और इसका नुकसान यह है कि बड़ा टिश्यू निकालना पड़ता है और एक टेक्निक बहुत टेक्निकल है. प्रोड्यूसेस ए बिग स्कार और नॉट रिकमेंडेड विद डिजीज विद क्रोनिक ऑब्सेस कैविटीज ऑफ द मिड लाइन. यानी जो ऑफ थोड़ा सा मिड लाइन से हट के कैविटीज हैं उसमें करेंगे तो वो ज़्यादा आपको काटना पड़ेगा. तो दिस इज़ ए डायमंड शेप रोम्बॉइड इंसिजन. यहाँ से आप ऐसे काटते हैं, ये एक ऐसे आपने कैलकुलेशन करके इसका करते हैं. पॉइंट्स होते हैं ए बी सी डी इस तरह. तो ये पोर्शन उठा के आपने इधर यूँ एडजस्ट करना है. जिस तरह ये इधर से काट के इसको यूँ लाया, ये कॉर्नर इसके साथ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा. तो इस तरह 3 कॉर्नर मिले तो ये इसको कहते हैं रोम्बॉइड फ्लैप. क्यूटेनियस रोटेशनल फ्लैप भी कहते हैं. Third is a Caridacus flap that was developed in 1965 by Caridacus, एक ग्रीक सर्जन थे. और इसमें यह है कि सीन ऑफ द वल्नरेबल टिश्यू, ठीक है, related displacement of the wound and you have to give an elliptical incision on the lateral side और फिर दोनों इंसिजन को आपने मिला देना है after excising the all the tissue like this one. ये आपने सारा निकाला, ये सारा टिश्यू निकाल दिया हुआ है और ये जो पार्ट है इसको ला के इसके साथ जोड़ देना. तो दिस इज कैरिडैकस फ्लैप. वी बाई प्लास्टी एक वी शेप इंसिजन है, ऐसे करके ऐसे आपने सारा टिश्यू निकाला और उसको ला के नीचे ऐसे जोड़ दिया. तो ये वी शेप इंसिजन लेके जब आपने जोड़ा है तो वाई बन गया. तो वी बाई प्लास्टी इट इज एप्लीकेबल टू पेशेंट दैट हैव फेल्ड अदर फ्लैप्स. जेड प्लास्टी दिस इज लीजन और इसके साइड पे आपने ऐसे जेड बनाया. जेड बना के इसको सारा ओपन किया है, स्किन और सबक्यूटेनियस उठाए हैं, अंदर से सारी सफाई की है और फिर इसको आपस में जोड़ दिया. दिस इज कॉल्ड दी जेड प्लस. और
Next entity is the rectal prolapse. A normal rectum, this is the rectal prolapse. So something coming out of the rectum is the rectal prolapse. Prolapse is mainly of two types, partial and complete. Partial में mucosa है, complete में सारी layers हैं. और एक्सचेंज ऑफ लाइम में कॉमन है, जैसे चिल्ड्रन में और अल्डर्स में, और फीमेल में ज़्यादा कॉमन है. एटियोलॉजी बच्चों में क्या है कि रेक्टम स्ट्रेट है और रिडक्शन ऑफ द स्पोर्टिंग फैट है, स्ट्रेनिंग एट स्टूल है और कमर कफ है. और बड़ों में क्या है, जैसे एडवांस पाइल्स हैं वो बाहर आते हैं, उसको प्रोलैप्स, लॉस ऑफ स्फिंक्टर टोन, स्ट्रेनिंग एंड यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट ऑपरेटिवली लाइक फिशुला का ऑपरेशन हुआ है. और कंप्लीट प्रोलैप्स की रीजन क्या है, स्लाइडिंग हर्निया ऑफ द रेक्टोवेजिकल एंड रेक्टोवेजाइनल पाउच ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द लेवेटर एंड आई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बेस्टी. तो इसमें जो है वो जो अडल्ट मेल्स हैं उसमें ये हैं, और जो फीमेल है उसमें यूजुअली ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड बेस्टी. फीचर्स क्या हैं, प्रोलैप्स इज नोटिस्ड इन ड्यूरिंग डेफिकेशन, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लीडिंग है, डिस्चार्ज है, और बाउल रेगुलर है, लाइकली इनकॉन्टिनेंस पेशेंट की डेवलप होती है. कॉम्प्लिकेशन इज इरिड्यूसिबिलिटी, इन्फेक्शन, अल्सरेशन, सीवियर हेमरेज, थ्रोम्बोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेनस रिटर्न लीडिंग टू एडीमा. ठीक है, एंड इरिड्यूसिबिलिटी एंड gangrene and sepsis, and even it can cause death. चिल्ड्रन में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कॉन्स्टिपेशन दूर करें, स्टेनिंग को अवॉइड कराएं, ठीक है, और प्रोटेक्ट को स्ट्रैप कर दें टुगेदर टू डिस्करेज द प्रोलैप्स ड्यूरिंग डेफिकेशन. एंड उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है अल्कोहल और फिनॉल के फॉर द लेग्स में पूरा, ठीक है. उसमें जिस तरह हमने अर्ली हेमराइड्स में आप इंजेक्शन करते हैं, इसी तरह इसमें कर दें तो फाइब्रोसिस हो जाएगा. और अगर अडल्ट हैं तो उसमें यू कैन एक्सरसाइज द एक्स्ट्रा टिश्यू आफ्टर लाइगेशन. You can inject phenol normalize this स्टिमुलेशन है स्फिंक्टर एक्सरसाइज, जो काजल एक्सरसाइज कहते हैं. तो उसमें मसल को स्फिंक्टर्स को स्टिमुलेट करें, एक्सरसाइज करें, तो उसमें प्रोलैप्स बेहतर हो सकता है. तो दिस ऑल इज द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और मिनिमम इन्वेजिव फॉर द प्रोलैप्स. कंप्लीट प्रोलैप्स सर्जरी इज रिक्वायर्ड, तो फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं. थर्स्ट ऑपरेशन है, रेक्टोसिग्मोइडेक्टमी है, पोस्टीरियर रेक्टोप्लेक्सी है, रिप्स्टीन ऑपरेशन है, डोलॉम्स प्रोसीजर है, एंटीरियर रिसेक्शन है. थर्स्ट ऑपरेशन में एक स्टिच लेते हैं, ठीक है, जो स्किन सबको क्लिनिस से अराउंड द एनस और थोड़ा सा उसको टाइट कर देते हैं, तो वो प्रोलैप्स बाहर नहीं आता. रेक्टोसिग्मोइडेक्टमी में आप प्रोलैप्स वाला सारा पोर्शन जो एक्सरसाइज ऑल द पोर्शन, दिस इज का आर्ट में प्रोसीजर. और फिर जो एनास्मोसिस है, इट इज बिटवीन दी rectoanal anastomosis. Posterior sling rectopexy में posterior to the rectus you have to fix the rectum with the sacrum. This is Wells procedure. और पीछे mesh भी रख देते हैं, ठीक है. रिप्स्टीन ऑपरेशन में भी रेक्टम से पीछे mesh है between the rectum and sacrum, और थोड़ा सा उसको ओवरलैप करते हैं. डेलॉम्स प्रोसीजर में you have to excise the mucosa and submucosa, and you have to stitch the margin of the rectum with the anal canal. And anterior section is like this carcinoma है, उसमें आप sigmoid को check करते हैं, end to end anastomosis of the colon. ये different procedures हैं जो उसके लिए full prolapse के लिए. इनकॉन्टिनेंस बेसिकली जो मैकेनिज्म है कॉन्टिनेंस का, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्टिंग एन इनएडिक्वेट स्फिंक्टर मैकेनिज्म अंडर कॉर्टिकल इनहिबिटरी कंट्रोल. जब इनहिबिटरी कंट्रोल खत्म होता है तो इनकॉन्टिनेंस होती है. तो कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें स्फिंक्टर लैकिंग है, ट्रामा हो सकता है, एनोरेक्टल डिजीजेज हैं जैसे प्रोलैप्स, पाइल्स, आईयूडीज, फीकल इंफेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू कार्सिनोमा. सम मेंटल रिटार्डेड पेशेंट जो है वो इनकॉन्टिनेंस कर सकते हैं. सेनाइल पेशेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स, जैसे स्पाइनल बाइफिडा एंड स्पाइनल ट्यूमर्स जो है, they all can cause incontinence. Incontinence can be true for the feces, partial for fetus, for feces, not the fetus, and overflow जिसमें स्टूल हार्ड है और उसके ऊपर से फ्लो कर रहा है. कंजर्वेटिव मेजर्स और फीकल इंफेक्शन जो है उसको ख़त्म कर दें, ठीक है, तो उससे कॉन्टिनेंस बेहतर हो सकती है. एनोरेक्टल लीजन अगर है, टेयर है, तो उसको प्रिपेयर कर दें, ठीक है. एंड ऑपरेटिव मेजर्स यू हैव अप्लाई द थर्स्ट ऑपरेशन, जिस तरह हम उसमें कर रहे हैं प्रोलैप्स में.
अराउंड द एनस आप एक स्टिच ले लें थर्स्ट ऑपरेशन, तो इनकॉन्टिनेंस बेहतर हो सकता है। ऑब्स्टेट्रिकल इंजरी में है तो उसमें वजाइना और कोलन दोनों को टेयर करें, कोलोपेरिनियोरेफी, ठीक है, उसमें कोलन एंड एनल आप बोथ को रिपेयर कर दें। स्फिंक्टोप्लास्टी, स्फिंक्टोरेफी, जिसको स्फिंक्टर रीफिंग कहते हैं, अगर स्फिंक्टर डैमेज हैं तो उनको आप रिपेयर कर दें। और अगर इनकॉन्टिनेंस इतनी ज़्यादा है यू कैन नॉट मैनेज बाय surgical intervention, then you have to do colostomy. Now, strictures of the anal canal, second last entity. Strictures can be congenital, postoperative, and inflammatory. Difficulty in micturition, defecation, ठीक है, और अगर inflammatory है तो bleeding, discharge, and tenesmus. Feeling food defecate instead of the defecation, this is tenesmus. और in late stage subacute intestinal obstruction. पाइप स्टेम स्टूल्स, जो बारीक स्टूल के जो पार्ट्स होते हैं उसकी तरह एक स्टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको पाइप स्टेम स्टूल्स पैथोजेनोमिक ऑफ एनल स्ट्रक्चर। और एनल स्ट्रक्चर में डायग्नोसिस बाय पीआर, you have to define the location, type and degree of stenosis. You can do proctoscopy if it allowed, and biopsy of the structure is benign as malignant है। ट्रीटमेंट क्या है? डायलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रोक्टोमी एंड इंटरनल प्रोक्टोमी। प्रोक्टोमी मीन यू हैव टू इंसाइज द स्ट्रक्चर, ठीक है, चाहे आप वो अंदर एंडोस्कोप डाल के करें, प्रोक्टोस्कोप और सिग्माइडोस्कोप, या एंडोस्कोपिकली करें या बाहर से करें, ठीक है, ओपन द कैनाल फ्रॉम आउटसाइड और डू द एंड गिव द इncision over the structure. So this is the proctotomy, opening of the rectum. So benign structure, and last is the anal carcinomas, ठीक है, which can be benign as well as the malignant. benign carcinoma जो हैं वो anal warts हैं, juvenile polyps हैं, adenomatous polyps हैं, villus papillomas, familial polyposis, pseudopolyps, endometrioma. बेसिकली वार्ड्स जो हैं दे आर वायरल। जुवेनाइल में इन बच्चों में पोलिप्स, एडिनोमेटस पोलिपोसिस, जो एक ऐसे गोल सी चीज़ बाहर आती है, ठीक है, और बच्चों में हम पोलिपेक्टमी करते हैं, ठीक है। पोलिप्स आर बेसिकली राउंडेड बिनाइन ट्यूमर्स ओरिजिनेटिंग। तो विलिस पेपिलोमा बेसिकली द hyperkeratosis or growth of the papilla of the anal canal, and familial polyposis में बहुत सारे polyp होते हैं, this is congenital problem, and pseudopolyp is not a true polyp, it is only mucosa, not all the other walls of the rectal wall. Endometrioma is endometriosis from the uterine cavity in the female, और वो लीजन जो वहाँ जाके endometrium बनता है। तो ये जो एपिथेलियल बिनाइन ट्यूमर्स है ये एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर्स हैं उसमें फाइब्रोस टिश्यू से पोलिप बन सकता है, लाइपोमा हो सकता है, मायोमा मसल से हो सकता है, हीमेंजियोमा वेस्कुलर लीजन हो सकता है, और लिम्फोइड टिश्यू से लिम्फोमा हो सकता है। तो ये सारे बिनाइन लीजन्स हैं जो एनोरेक्टल एरिया में प्रेजेंट कर सकते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या हैं? यूजुअली मसल कार्सिनोमा, और दूसरे भी हैं एडेनोकार्सिनोमा, जिसमें कैसे एंडोडर्म में ऊपर जो एडेनोकार्सिनोमा है, मेलिग्नेंट मेलानोमा इन बेसल सेल कार्सिनोमा, दे आर more less common tumor as compared to squamous cell carcinoma. तो squamous cell carcinoma का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। This is arising from the stratified squamous epithelium of the lower valve of the anal canal. It is uncommon and disease of the elders. It is more common in male. Etiology is unknown. Like in chronic irritation and infection, it is considered as a predisposing factor. It is less than 5% of all anorectal malignancies. Disease growth, very irregular and ulcerated surface, history of bleeding, history of pain with discomfort, tenesmus with incontinence, and perianal discharge. When you examine the patient with anal tumors, squamous carcinoma feel hard and woody due to invasion of the perianal tissues. On parectal examination is impossible because of stenosis or discomfort. Inguinal lymph nodes are examined carefully, और वो usually lymph nodes enlarged होते हैं क्योंकि midline structures starting from the anus up to the
oral cavity, they are up to the penis, they are drained to the inguinal lymph nodes. And perineal, तो ये examine करना बड़ा जरूरी है. They receive lymph from the lower anal canal and perineal region and may be the site of metastasis. So how to treat the anal tumors? Squamous cell carcinoma is divided into two types. They're spreading above the pectinate line and confined below that line. तो अगर pectinate line से ऊपर है तो वो ऐसे ही ट्रीट होते हैं जैसे कोलोनिक कैंसर है. और इसलिए जो ऊपर वाले कैंसर है उसमें abdominal perineal resection है, APR जिसको कहते हैं, उसमें you have to excise from the abdomen and from the rectum. All the rectum and anal canal, and you have to close the anus, and you have to make the permanent colostomy on the left side of the abdomen. So this is APR. All that tumor that are above the pectinate line, abdominal perineal section is done. जो उससे नीचे हैं उसमें लोकल एक्सीजन है और इंग्वाइनल लिम्फेडेनेक्टमी है जिसको एन ब्लॉक डिसेक्शन कहते हैं if metastasis is present in the inguinal lymph nodes. And you have to do palliative colostomy, lobe colostomy for healing of this the anal region. जब heal हो जाए तो you can reverse the colostomy, and adjuvant chemotherapy and radiotherapy is part of the management of this anal cancers. Last slide, other cancers, rare malignant anal tumors, तो हमने पहले भी पीछे देखा है. एडिनोकार्सिनोमास, ठीक है, जो एंडोडर्म में होंगे. बेजल सेल कार्सिनोमास, ठीक है, जो स्किन के ट्यूमर्स हैं और नीचे जो स्किन के अंदर हैं बेजल सेल्स में. और मलिग्नेंट सेल मेलानोमा जो मेलानोसाइट्स के अंदर डेवलप होते हैं और जो बाहर स्किन के एरियाज में होते हैं. दे आर रेयर ट्यूमर्स बेसिकली. So then, thank you very much. If any question, kindly you can do the question. Any question? Hello. Okay, thank you very much.